Good morning, dear students. Welcome you all on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we'll study map of India for class 8th, okay, ICSE. So we are going to cover today a very important topic, that is map, in which today we will cover the map of India. This is especially made video for class 8 as it covers class 8 syllabus. But one more important thing is that I would like to tell that class 8 and class 10 syllabus for map is nearly same. So you should learn as more as possible for your upcoming board examination also. Okay. So we are going to start now. See, the first topic is water bodies. In that it is given the Indian Ocean. So see, here you will have to write Indian Ocean. Means when we cover the first topic regarding this, that is Indian Ocean, so here you will have to write Indian Ocean. This is the Indian Ocean you will write, okay. Indian Ocean. Done. I hope this is clear to you all that this is the Indian Ocean. Next, Arabian Sea. So for Arabian Sea, this is the part where it lies. So you will have to write or mention Arabian Sea here. Next we will go for the Bay of Bengal. You will write here Bay of Bengal, okay. I hope please take your maps and start filling just now, otherwise. Now Lakshadweep Sea. The Arabian Sea, we have this Lakshadweep Island. So important thing is that for Lakshadweep Island also it is there in your syllabus. So you will write here Lakshadweep Island. These are the important islands. Basically these are nearly 36 in number. How many? 36 islands are there in Arabian Sea, and these are located 200 to 440 kilometer off the southern coast of India, okay. This is the Lakshadweep Island. This is the Lakshadweep Island, okay. Done. And this is the Andaman and Nicobar Island. This is Andaman and Nicobar Island. Done. So please you have to learn this. This is Andaman Sea also. Here you will write Andaman Sea. Done. And here I will erase it a bit. See, this is Lakshadweep Islands, these are Lakshadweep Islands, okay, and this is the Lakshadweep Sea. This part here is the Lakshadweep Sea, okay. The place between the Lakshadweep Island and the southern coast of India is the Lakshadweep Sea. So I hope this is clear to you all, and please आप अपने मैप में इसको फिलअप अभी भी करते जाएंगे और इसको अभी याद करते जाएंगे. डन. नेक्स्ट, फॉर योर विद योर सिलेबस इफ यू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू गल्फ्स. यू सी, दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ, ओके, गल्फ ऑफ कच्छ. सो दिस इज द गल्फ. आप इसके अंदर बिल्कुल मार्क करेंगे, अगर बाहर आपने मार्क किया तो गलत हो जाएगा. ये अंदर जो जगह बचा है ना, इसके अंदर गल्फ ऑफ कच्छ हो गया. अगला गल्फ ऑफ खाम्भत. ये देखो गल्फ ऑफ खाम्भत हो गया. ये गल्फ है अंदर की तरफ, ओके. इंस्ट्रक्शन अगर मैं दूं आपको तो प्लीज यू हैव टू यूज पेंसिल ओनली. सिर्फ पेंसिल का यूज करें, कलर्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली यू हैव टू यूज वाटर कलर, सॉरी पेंसिल कलर, नॉट वाटर और स्केचेस. डोंट यूज पेन ऑल्सो. और जितना एग्जैक्ट हो सकता है आप उतना एग्जैक्टली उसको लोकेट करें. डन. नेक्स्ट, गल्फ ऑफ मन्नार. यू सी, यहाँ देखिए नीचे जो अंदर की तरफ जमीन धसा हुआ है ना पार्ट, ये वाला, यही है गल्फ ऑफ मन्नार. आपको यहाँ मार्क नहीं करना है, सिर्फ एरो लगा देना है. जैसे मैंने मार्क किया है सेम ऐसे ही मार्क करना है, ओके. गल्फ ऑफ मन्नार को आप ऐसे नीचे से ही मार्क करेंगे. और ये देखो ऊपर से है ना ये पाक स्ट्रेट, ये पाक स्ट्रेट ऊपर से स्ट्रेट, जो छोटा सा पानी जो दो बड़े बड़े जमीनों को अलग करता है ना, आप इसको स्ट्रेट बोलते हैं. ये वाला भाग हो गया. तो ये देखो यहाँ पे है, आप इसको ऐसे मार्क करेंगे. डन. अगर दूसरे मैप में अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं आपको, तो चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ. देखो देखो ये हो गया आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ऐसे मार्क करेंगे आप. डन.
यहाँ लिखेंगे आप गल्फ ऑफ मन्नार। डन, समझ में आ गया ना। और अगर अगला दूसरा हम बात करें कि क्या हो सकता है, तो पाक स्ट्रेट कैसे मार्क करेंगे, कहाँ मार्क करेंगे, तो आप इसको यहाँ मार्क करेंगे, पाक स्ट्रेट। स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल, पाक स्ट्रेट। डन, आपने ये मार्क कर लिया। क्लियर, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ खामभट। क्या हो गया, गल्फ ऑफ खामभट। और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है ना, अंदर की तरफ मार्क करेंगे आप गल्फ ऑफ कच्छ। आप प्लीज़ अभी पेंसिल पेन लेके बैठे और ज़रूर मार्क करें, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ये समझ लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, अगला देख लेते हैं। फिर आपके सिलेबस में क्या है, चिल्का लेक है। चिल्का लेक को यहाँ से ईजिली देखा जा सकता है, इस वाले मैप में देखें, देखें ये देखें चिल्का लेक है ये, ठीक है ना। आप देखो ये चिल्का लेक, यहाँ ना थोड़ा सा छोटा सा डिप्रेशन है, यानी गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है यहीं पे मैप ऑफ इंडिया में, आप वहाँ इसको मार्क कर लेंगे क्लियरली, चिल्का लेक उड़ीसा में है। डन, आगे बढ़ रहे हैं माउंटेन्स। अब हम बात करेंगे माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स में बिल्कुल खास है, बाकी जो बहुत सारा आपको दिख रहा होगा लेबल, ये क्लास 10th का सिलेबस है, आप जितना याद कर सकते हो याद करना, वरना जो आपके सिलेबस का है मैं उसको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वो तो आपको मिनिमम याद ही रखना है। फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन, ये देखें हिमालयन माउंटेन, यहाँ हिमालयास। तो ये माउंटेन जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चल रहा है ना, देखें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का मतलब क्या, ये वेस्टर्न कोस्ट से लेते हुए ये जो माउंटेन है, आप जैसे मैंने ड्रॉ किया ना वैसे ही ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा खराब नहीं कर रहा हूँ। ये जो माउंटेन है ना, यही आपका हो गया कौन सा माउंटेन, हिमालयन माउंटेन। नेक्स्ट काराकोरम रेंज, ये देख लें ऊपर है, ये है काराकोरम रेंज। डन, आप एज इट इज अभी इसको ड्रॉ करें, एग्जाम में अगर आप इधर उधर ड्रॉ करोगे तो गलत होगा। यही मैप आपके बोर्ड में मिलता है, इसलिए मैंने वही सीट उसी पे उठा के मार्क कर दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरावलीज, अगला देख लें, ये अरावलीज रेंज, ये राजस्थान, ठीक है ना, ये अरावलीज रेंज। आप माउंटेन्स को ना ब्रॉड से मेंशन करते हैं, ब्रॉड का मतलब एक लाइन से नहीं, कम से कम 2 या 3 लाइन। दूसरा माउंटेन सीधा नहीं होता है, हमेशा टिल्टेड होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट विंध्याचल रेंज या विंध्यास रेंज, ये देखें विंध्यास रेंज हो गया, ये जो नर्मदा और ताप्ती रिवर्स है ना, नर्मदा रिवर के ऊपर है विंध्यास रेंज। डन, और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है आपका सतपुरा रेंज, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आपके सिलेबस में है, वेस्टर्न घाट ये देख लो, ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, लाइन से बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिसको आप क्या बोलते हो, वेस्टर्न घाट। और ईस्ट साइड में है, यहाँ से लेके लास्ट तक ये सारा हो गया आपका ईस्टर्न घाट। डन, ये आपके इतने सिलेबस में है, आपको इतना तो याद ही रखना है मिनिमम। डन, आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर और हम आगे चलें तो थोड़ा सा और आप देख लो, कोंकण एंड मालाबार, ये हो गया कोंकण, और ये जो नीचे वाला है ना, ये है आपका क्या, मालाबार, ये नीचे वाला हो गया आपका मालाबार। इसका ट्रिक क्या है, किलोमीटर, ऊपर के होगा नीचे एम होगा। ये कोंकण आप यहाँ तक लेबल करेंगे। डन, यहाँ से लेके यहाँ तक, मालाबार वो बाकी नीचे। डन, ईस्टर्न ये वेस्ट साइड में है, दिस इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड। अब ईस्ट साइड की बात करें तो ये देखें नॉर्दर्न सिरकार हो गया और कोरोमंडल कोस्ट। इसका ट्रिक क्या है, NCC, NCC वाले करते हैं ना ट्रेनिंग, वही है NCC, नॉर्दर्न सिरकार, फिर कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सिरकार यहाँ तक है ऊपर से, और नीचे का पार्ट कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है ना, कोरोमंडल कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकार। आपको ये याद ही रख लेना है, इसमें कोई दूसरा डाउट या कुछ इस टाइप से कुछ होना ही नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट देख लें, ये हो गया आपका थार डेजर्ट, येलो कलर से हमने मार्क किया है। गैंजेटिक प्लेन, ये भी ग्रीन कलर से ऑलरेडी आई हैव मार्क्ड हियर, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा, ये जो डेल्टा है ना, यही सब है आपका कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ओके, ये कौन सा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। डन, तो ये तो मिनिमम चीज़ है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बाकी जो भी आपको जितना याद रखना है वो तो मैंने ऑलरेडी इसमें पूरा मार्क करके दिया हुआ है, एंड मिनिमम यू हैव टू लर्न दिस, ओके, फॉर ए बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट विल गो फॉर द रिवर्स। ओके, अच्छा इसमें देख लो, इसमें एक चीज़ दिखा रहा है यहाँ आपका
दो चीज़ है, फर्स्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन और सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो आपके सिलेबस में जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के 8 स्टेटों से होके गुजरता है। ये लाइन यहाँ से इंटर करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी और आपको ये ड्रॉ कर लेना है, ये याद रख लेना है। ओके, बाकी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसको आप क्लास 10th के लिए याद रखेंगे। डन। ये काराकोरम पास, ये नाथुला पास, ये दोनों नाथुला पास भी हो गया, काराकोरम पास। पास को आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे। दिस इज द वुलर लेक। डन। So I hope this is clear to you all. Now we will go directly on the rivers. Where we are going? We will go for the rivers. Okay. Rivers you see इंडस, गंगा, यमुना। रिवर इंडस की हम बात करें तो देख लें आप, यहाँ पे ये जो टॉप वाली रिवर है ना, यही है रिवर इंडस, ठीक ना, सिंगल रिवर। और अगर आपको इन सारे रिवर्स का ट्रिक चाहिए होगा तो मैंने क्लास 10th के लिए अपलोड किया है, क्योंकि उनका पूरा उनको रिवर ड्रॉ याद करना था, आपको तो सिर्फ यही रिवर्स को याद रखना है। इसलिए रिवर गंगा, यमुना, सी। इसके बाद हम बात करें गोदावरी, कृष्णा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है ना, ये रिवर्स हो गई आपकी। एंड यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्रा ये है, दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, एंड दिस इज द यमुना रिवर। ये कौन सी रिवर हो गई? यमुना रिवर। फर्स्ट वाली जो रिवर है ना, यही है यमुना रिवर। सेकेंड वाली ये यमुना है, फर्स्ट YAMUNA, डन, यमुना रिवर हो गई, ठीक ना। और गंगा वगैरह के लिए अगर आप देखो, मैंने ये जो सिलेबस में था वो मैंने मार्क कर दिया आपके, ठीक। अब देख लो बाकी जो रिवर्स हैं इनको भी देख लो आप। दिस इज यमुना, गंगा, दिस इज गोमती, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र, all the rivers are here. So this is the small syllabus for class 8, but the basic instruction which you have to follow is that you have to use pencil. Map should be very clean and crystal. Okay, first thing that you have to use pencil. Second, it should be very clear. Third, it should be up to 2 millimeter distance, 2 millimeter distance, यानी अगर किसी चीज़ को पूछ दिया ना, वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा इधर उधर वैरी आप ना करें, उसको एग्जैक्ट वहीं ड्रॉ करने की कोशिश करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। ओके, आप प्रैक्टिस करें, मैप लेके उसमें फिलअप करें, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको इन रिवर्स का ट्रिक चाहिए ना, तो क्लास 10th में हमने दे दिया है सारा रिवर। जैसे देख लो, ये यमुना, गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, ये रिवर्स की सारी ट्रिक चाहिए ना, तो वहाँ है। अगर आपको आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा रिवर्स नहीं है, इनसे काम चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर डिटेल में चाहिए तो क्लास 10th का वीडियो हमने इसी चैनल पे अपलोड किया, आप उसको जरूर देख लें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।